Okay, sir. Have you talked, sir? Okay, sir. Today we are very happy to welcome you all in this program that is organized for the My Story motivational session by successful entrepreneurs, startup founder, and our chief guest is Sudhir Awasthi ji, CEO, Chief Executive CEO, Sri Go Hotels and Resorts. Sir, we welcome you. Thank you. I also welcome all our director sir, our colleagues, and our students who are present over here. This program is going to run under the IIC, Institutions Innovation Council, Ministry of HRD, Government of India, and our College of Agriculture Science is always think about innovations and startup for the future endeavors. So आज मैं सुधीर अवस्थी सर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा. आप बहुत महान हस्ती हैं. Dr. Devendrapal ji, your voice is not clear to us. You are not audible, please. Okay. एक्चुअली क्या मैं नेटवर्क तो ठीक है. Awasthi sir, okay, please continue. Now voice is clear. ठीक है सर. So a brief introduction about sir, Mr. Sudhir Awasthi sir. He is a management graduate having insightful experience in sales and marketing, business development, and team management with excellent understanding of business dynamics and updated market knowledge combined with creative strategy. He is highly motivated, positive, and goal-oriented with demonstrated professionalism, attention to detail, as well as the ability to build and lead effective teams. Excellent communicator with exceptional talent for problem solving through reasoned through processes, as attested to by a track record for client loyalty and employer satisfaction. Sir, we are also going to tell you about Awasthi sir. He is a strong background and devising innovative strategies to achieve better market penetration and garner a reasonable market share. सर हमारे बीच में हैं और हम सर से बहुत कुछ आज सीख सकते हैं, क्योंकि सर का जो मैं बैकग्राउंड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. सर ने इनोवेशन और स्टार्टअप में, और सर के मार्गदर्शन में आज हमें जो कुछ सीखने को मिलेगा, हमें जो जानने को मिलेगा, ये हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी और हम सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा. और ऐसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस लेक्चर से हम सबको बहुत फायदा होने वाला. धन्यवाद. अब मैं अपने कॉलेज के डायरेक्टर सर डॉक्टर MP सिंह सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज से फ्यू वर्ड टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम. सर अनम्यूट करिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर. Thank you, Dr. Devendrapal ji. Am I audible to all? Yes, sir. Okay. Sudhir, I am audible to you, Sudhir ji? Hello? Okay. So, I request to all, please mute yourself until unless you are not asked to do so. जब तक आपसे प्लीज अनम्यूट करने को ना कहा जाए किसी को भी, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए.
except Mr. Sudhir, please rest of all you are requested to mute, because there are a lot of disturbances we are feeling in the backgrounds. So this is Dr. Devendra Pal ji already discussed about the theme and background of today's session. Obviously this will be a bilingual basically. कोई जरूरी नहीं है कि बात समझ में अंग्रेजी में ज्यादा है, हिंदी में ज्यादा है, डजंट मैटर. इंपॉर्टेंट है बात समझ में आनी चाहिए, हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उसका हम तभी ठीक से हम उसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे जब तक हम उसको ना समझ लें. जब समझेंगे तभी कर पाएंगे बेसिकली. सो सबसे पहले मैं डॉक्टर मिस्टर सुधीर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और शायद आप लोगों के बीच में मुझे कहते हुए फक्र महसूस हो रहा है कि सुधीर अवस्थी जी को मैंने 2004-05 में जब मैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था, उस समय सुधीर हमारे स्टूडेंट रहे हैं. बाकी स्टोरी सुधीर खुद बताएंगे, क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारा सेशन जो डिस्कशन का है वो यही है कि जिससे आप उन सुधीर जी की स्टोरी से इंस्पायर हो सकें, उसको समझ सकें, और उससे आपको कुछ ना कुछ सीख मिल सके. और एक सीख भी हम लोगों को लेनी होगी, और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उससे हम आज कुछ ना कुछ सीखें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें. तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पिंकी जो बीएड है, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा है आपको. पिंकी बीएड, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. I request again and again, please mute yourself. Otherwise, this session will create a lot of background sounds basically. So I request Sudhir जी की आप हमारे बीच में हैं, हम लोगों को कुछ आज सीखने को मिलेगा, हमारे स्टूडेंट्स को सीखने को मिलेगा. और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, और उसके तहत मेन पर्पस इसका ये है कि जिससे हमारी जो नई जनरेशन है, वो जो हमारे इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स वाले लोग हैं, उन लोगों से हमको सीखने को मिल सके. तो ज्यादा वक्त ना लेते मैं सुधीर जी से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज सीधा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में कुछ शेयर करें, जिससे हमारे स्टूडेंट्स को कुछ फायदा मिल सके, हमारी फैकल्टी को मोटिवेशन मिल सके, हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिल सके. सुधीर अवस्थी जी प्लीज. सुधीर जी आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को. Now it's audible. Okay. Yes, now you are audible. Okay. Firstly, wish you a happy new year to all of you, and this is a really great honor for me sitting at this platform. I'm not sure कि I'm comfortable with for particular this platform or not, but I'm really very appreciated to all the college management and especially MP Singh sir to they just find out me कि I can speak something about myself. एंड जैसा कि सक्सेसफुल स्टोरी की बात कही है सर ने, तो सक्सेस एक ऐसा वर्ड है जो कि हमेशा अनकम्प्लीट रहता है. आप कभी भी सक्सेसफुल होना एक प्रोसेस है जिसमें कि आप स्टार्ट करते हैं, और मैंने भी यही सोचकर एक लाइफ में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. और इट्स वेरी सिंपल और बेसिक. जैसा कि मैं अपना बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँ तो मैं एक बहुत बेसिक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और जब मैंने अपना स्टार्ट किया था बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में, और मतलब सब कुछ एक निगेटिव, जितना भी निगेटिव हो सकता था ऑर्डिनरी एक लाइफ में सबके साथ जो होता है वैसे ही मेरे साथ भी हुआ. और लेकिन लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, और ये परफेक्ट एटमॉस्फेयर वो आप पे ही डिपेंड करता है. बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स होंगे जो आज की डेट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे अपनी लाइफ को लेके. आइदर या तो उन्होंने कुछ स्ट्रीम ऐसा चूज किया होगा, उन्हें लगता होगा कि यार एमबीए करता तो बेटर था, बीटेक करता तो बेटर था, एग्रीकल्चर करता तो बेटर था, समथिंग लाइक दैट. तो डियर ऑल, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, मेरा मानना है कि किसी भी लाइफ में किसी भी स्ट्रीम में आप एंटर होते हैं, आपको पूरा डेडिकेशन देना होता है. डेडिकेशन जब तक आप नहीं देंगे तब तक आप लाइफ में कभी कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं. सेम फील्ड का बंदा आपको अर्श पे मिलेगा, सेम फील्ड का बंदा आपको फर्श पे मिलेगा. डिपेंड करता है कि आपका लाइफ का एटीट्यूड क्या है, अपने आप को अपने देखा कैसे है. तो एक सक्सेसफुल करियर के लिए आपको एक परफेक्ट प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और जितनी जल्दी आप लोग प्लानिंग कर लेते हैं उतना ही बेटर है. आप सोचते हैं कि मैं आज प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, एक दिन पास हो गया मेरा, तो ये इससे मुझे कुछ मतलब लॉस नहीं हुआ. ये 100% आपका लॉस है. क्यों? क्योंकि वो लाइफ में एक दिन जो आप कुछ कर सकते थे
आज वो बैंक चला गया, और ब्लैंक डेज में हमेशा ही आपको लॉस होता है। मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग बहुत अर्ली स्टेज में कर ली, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस की मुझे ये बात कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं फाइनेंशियली काफी पुअर बैकग्राउंड से था, ओके, और एक बड़ी फैमिली को बिलोंग करता था, और लेकिन ये जरूर है कि लोगों का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ होता है, और जब आप, किसी ने सच्ची कहा है कि मैं अकेला ही चला था, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, और बुलंदी को बुलंद कर इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। 8th क्लास के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो 8th क्लास के बाद कि तो आप जितनी अर्ली प्लानिंग करेंगे उतना बेटर है। तो मुझे 8th क्लास के बाद ही पता था कि मुझे एमबीए करना है। अब एमबीए करना है तो नेचुरल सी बात है, एमबीए करना है तो एक प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करना है। अब प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करना तो नेचुरल सी बात है, उसकी फीस भी पे करनी होगी। तो फीस पे करने के लिए नेचुरल सी बात है, मैंने पार्ट टाइम जॉब 8th के बाद से ही स्टार्ट कर ली। 8th के बाद अगर आप कुछ जॉब करना चाहते हो तो आपके लिए परफेक्ट कुछ ही इंडस्ट्री है जो कि, अगर, बिकॉज बेसिकली आई बिलोंग टू मुरादाबाद, ओके, तो मुरादाबाद में कुछ ऑप्शंस नहीं थे कि आप पार्ट टाइम जॉब भी करते जाएं और अपना इंडस्ट्री में भी कुछ कर सके अपनी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होटल इंडस्ट्री परफेक्ट फॉर मी, क्योंकि स्मॉल सिटीज में होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि 24 आवर्स रन होती है। तो मैंने किया इनफैक्ट स्टडीज करना, और ड्यूरिंग माय एमबीए अगर मैं बताऊं तो आई वाज वर्किंग विद द मानसो पैराडाइज। इट्स अगर कोई सिटी कैंपस को जानता हो तो इट्स वेरी नियर बाय टू दैट सिटी कैंपस। तो मैं नाइट में मानसो पैराडाइज में जॉब करता था और डे में कॉलेज करता था। 2 साल में कंटिन्यू एंटायर टेन्योर में सिर्फ 4 घंटे सोया हूँ, क्योंकि 9 to 5 का कॉलेज और 10 to 8 की जॉब, 2 साल कंटिन्यू। लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं कि मुझे बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई। इनफैक्ट एक सक्सेस का जो प्रोसेस है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दैट इज 15 इयर्स। आपको किसी भी इंडस्ट्री में आपको 15 इयर्स देने हैं, कुछ भी आप करें, डेडिकेशन के साथ दें, ऑनेस्टी के साथ दें, ऊपर वाला आपके साथ रहेगा। तो इवन जो मुझे बहुत अच्छी तरह एक केस याद है, इनफैक्ट जिस समय मैं सर के पास पहुंचा कि सर मुझे एमबीए करना है, और फीस की जब बात आई तो सर ने बोला कि देखो आज की डेट में जो नॉर्मल सिनेरियो है उसमें आपको फीस पूरी जमा करनी है। तो सर ने स्पेशल रिकमेंडेशन पे, मुझे अभी ध्यान है कि सर ने मुझे फॉरवर्ड कर दिया। तो जब मैं चेयरमैन सर के पास में गया तो चेयरमैन सर ने मुझसे पूछा कि पहले ऐसे करते हो जो एमबीए करना चाहते हो, और तुम कह रहे हो फीस में सर इंस्टॉलमेंट में दूंगा, वो भी मंथली दूंगा, तो ऐसे कैसे होगा? मैं एमबीए करना चाहता हूँ इसीलिए तो मैं मंथली दूंगा। तो सर ने पूछा क्यों? सर एमबीए का मतलब ही है ना, जितना ज्यादा सेव करो उतना ज्यादा बेटर है। तो मुझे अब भी ध्यान है, सर ने बोला था तुम्हें एमबीए की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिग्री के लिए करना चाहो तो कर लो, लेकिन फिर भी आप कितनी भी मेहनत कर ले, आपको आपको ऊपर वाला शायद आपको आपके पेशेंस को, आपकी ऑनेस्टी को, सब चीज को चेक कर रहा होता है। फर्स्ट सेम कंप्लीट हुआ, फर्स्ट सेम के बाद में फर्स्ट सेम में मेरे पास में 3 बैक, फर्स्ट सेम में 3 बैक, सेकेंड सेम में क्लियर रहा, थर्ड सेम में फर्स्ट सेम के थर्ड सेम का पूरा लोड, और प्लस फर्स्ट सेम के 3 बैक पेपर। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी हो सकता है बैक आ गई हो, बहुत ज्यादा घबरा रहे हो, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा डिप्रेसेशन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, सोचते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, बी पॉजिटिव, मोटिवेट रखें अपने। सेल्फ मोटिवेशन से अच्छा मोटिवेशन कोई नहीं है। अगर आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, बिलीव मी, नेगेटिव से नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्यों ना आए, सिचुएशन क्यों ना, आप ओवरलैप कर जाएंगे, आप निकल जाएंगे। थर्ड सैम में फर्स्ट सैम की 3 बैक किया, एवरेज मार्किंग रही, अच्छा रहा, गुड सेकंड डिवीजन से मैंने एमबीए क्वालिफाई किया। ओके, आप एमबीए क्वालिफाई करने के बाद एक बहुत बड़ा माइलस्टोन मुझे लगा मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी नहीं, स्ट्रगल अभी भी बाकी है। इवन एमबीए के बाद में आपकी असली स्ट्रगल स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि मैंने मूव किया दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर में एक एमबीए की फ्रेशर डिग्री लेके, आप जानते हो तो जो लोग भी अभी मतलब जिन्होंने अभी रिसेंटली कॉलेज कंप्लीट किया हो, मे बी कुछ व्यूअर्स इसमें ऐसे भी हो जिन्होंने अभी रिसेंटली डिग्री अपनी कंप्लीट की हो,
तो उसमें भी आपको अपने आप को करना होता है। तो अगेन आपके लिए एक नया स्ट्रगल चालू हुआ। दिल्ली एनसीआर में जब मैं गुड़गांव पहुंचा तो एक लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड फाइनेंस के साथ में जब मैं पहुंचा तो वहां भी एक सेल्फ सस्टेन्ड प्लानिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मुझे ये था कि फर्स्ट जॉब के लिए मुझे एटलीस्ट कम से कम 3 मंथ्स का टाइम लगेगा। तो उस 3 मंथ्स में, क्योंकि किसी भी सिनेरियो में अगर मैं यहाँ पे 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट में से अगर 50-60% की बात होती है कि यार अगर मेरा फाइनेंशियल बहुत अच्छा होता तो बोल, अगर फाइनेंशियल बहुत अच्छा होता तो फिर करने की जरूरत क्या थी, आराम से बैठ के खा सकते थे। सुधीर आप म्यूट हो गए हैं। सुधीर यू आर म्यूटेड। सुधीर म्यूट कर लिए प्लीज। हाँ अनम्यूट करिए। ठीक है, अब ठीक है। इट्स ऑडिबल ना? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। ओके, सो परफेक्ट जो टाइमिंग थी कि एक जब मैं गुड़गांव लैंड किया तो ये था कि सब एक लिमिटेड रिसोर्स है आपके पास, लिमिटेड फाइनेंस है, और आप में कम से कम जो आपको जो पहली जॉब मिलेगी आफ्टर एमबीए में भी हो सकता है वो 2 महीने का टाइम लगे, 3 महीने का टाइम लगे। क्योंकि मैं एक ब्लो स्टूडेंट था, एवरेज स्टूडेंट था, तो मुझे कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिल पाया। क्योंकि कोई भी कंपनी बट नेचुरल है कि अगर प्लेस करती है तो सब हायर रैंक को प्लेस करती है। एक ब्लो एवरेज स्टूडेंट या लो एवरेज स्टूडेंट को लोग प्लेस नहीं करना चाहते। तो मेरे लिए टारगेट था कि अब मैं इसको कैसे करूं। तो इनफैक्ट जब मैंने दिल्ली एनसीआर में ज्वाइन किया तो मुझे फर्स्ट 3 मंथ्स में, can you believe, I've spent my 3 months on railway station because वो सबसे सस्ती एकोमोडेशन थी। मॉर्निंग में इंटरव्यू लाइंड अप करना, डिफरेंट इंटरव्यू को रिज्यूम करना, ज्वाइन करना, अब उसके लिए एक बेसिक आपको इंफ्रा चाहिए होता है। तो मुझे लगा रेलवे स्टेशन से अच्छा कोई इंफ्रा नहीं है। तो वहां पे अब भी मुझे याद है कि गुड़गांव से रेवाड़ी के लिए एक ट्रेन जाती थी जिसका कि सबसे पैसेंजर का जो टिकट था वो 1 रुपया हुआ करता था। तो मैं नाइट में, वो ट्रेन वहां से 8 बजे चलती थी और वो रात में 2-2:30 बजे तक रेवाड़ी पहुंचती थी, और मॉर्निंग में वहां से वापस आती थी 9-9:30 बजे, तो वापस गुड़गांव स्टेशन। मैंने उस ट्रेन को अपना घर बना लिया कि मुझे लगा 2 रुपए पर डे से सस्ती एकोमोडेशन मुझे नहीं मिलेगी। रेलवे स्टेशन ही मेरा घर हुआ करता था। मॉर्निंग में आया, चेक किया, सब कुछ चेंज किया और मैं इंटरव्यूज के लिए निकल जाता था। पहली जॉब मुझे मिली, दैट इज अ ब्रिस्टल। ब्रिस्टल इज द फर्स्ट 5-स्टार डीलक्स होटल इन दिल्ली एनसीआर। हरियाणा का पहला 5-स्टार डीलक्स होटल है। वहां पे मुझे एज ए सेल्स में जॉब मिली। जब सेल्स में मुझे जॉब मिली तो वहां पे मुझे समझ में आया कि मेरा जो बिफोर एमबीए एक्सपीरियंस था उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। क्योंकि एक मुझे जो कंपेयर किया जाता था एज ए फ्रेशर, बट मेरे पास में 5-6 इयर्स का एक्सपीरियंस था। तो आप कह सकते हैं कि मेरा बिफोर एमबीए जो मेरा स्ट्रगल था वो मेरे काम आया। स्ट्रगल मेरा जीरो नहीं रहा। मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में स्टार्टिंग रही। लाइफ में अभी भी माइलस्टोन पाना वो सब कुछ बाकी था, बहुत कुछ करना था, ठीक है। कंटिन्यू लेबर कंटिन्यू मेहनत की, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। आई वॉज द वन ऑफ द यंगेस्ट जनरल मैनेजर इन एंटायर कंट्री। 25 की एज में मैं सबसे पहले सबसे यंगेस्ट जनरल मैनेजर प्रॉपर्टी का बना। देन अगेन मेहनत की, देन एरिया डायरेक्टर, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, करते करते काफी हो गया। तो मुझे लगा कि लाइफ में चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को जब तक खुद को चैलेंज, क्योंकि आपका कंपटीशन किसी से नहीं है। अगर लाइफ में आप ये सोचिए कि आप अपना कंपटीशन किसी से कर रहे हैं, नहीं, आपका कंपटीशन खुद से है। दुनिया को आप धोखा दे लो, अपने आप को कभी धोखा मत देना। लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि मॉर्निंग से उठने से लेकर रात में सोने से पहले जब हम अपने आप को आईने में देखें तो हम अपने आप से नजरें मिलाते हैं। डॉक्टर देवेंद्र पाल जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। अवस्थी जी अब आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है। अभी एंटरटेनमेंट भी जरूरी है बीच में। एंटरटेनमेंट लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूरी है। ओके, तो इनफैक्ट लाइफ चलती रही। तो
उसके बाद में धीरे धीरे लाइफ काफी स्मूथ हो गई। आज दैट इज माय सेकंड कंपनी जिसको मैंने एज ए स्टार्टअप लिया है। ओके, एंड करेंटली आवर ग्रोथ रेट इज वेरी हाई। Srigo Group of Hotels is currently having 21 hotels across the country. Okay, our growth rate is very high comparison to among any new companies. Even though under lockdown we have performed very well due to, you can say, team support and the founder of the company. Okay, तो मैं यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है उस पे मैं वापस आता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको लाइफ में आगे चलने के लिए, आगे करने के लिए उनके पास में बहुत सारे रास्ते होंगे। ओके, पास्ट में जाके, ये वक्त की विडंबना कह लें या हमारी मजबूरी कह लें, हम पास्ट में जाके कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आज अभी इसी वक्त अगर हम चाहें तो अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग बहुत स्मॉल गोल्स बनाएं। बहुत बड़े गोल्स बनाने की जरूरत नहीं है, स्मॉल गोल्स बनाएं, स्मॉल गोल्स बनाएं जिनको कि आप अचीव कर सकें। कई बार हमें ये लगता है कि यार बहुत ज्यादा सक्सेस बहुत टफ है, इसलिए मतलब इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि बहुत स्मॉल होती हैं लेकिन उनको भी कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल है। लाइक एग्जाम्पल कि सब बोलते हैं कि एक सेब आप रोज खाएंगे तो भाई डॉक्टर से दूर रहेंगे। कितने लोग एक छोटी सी चीज, एक एप्पल डेली खा सकते हैं? नहीं, सबसे स्मॉल चीज है लेकिन प्रोसेस में आप लेने जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। ओके, तो लाइफ में एवरी डे हमें ये पता होना चाहिए कि किस एज के किस पड़ाव में हमें क्या करना है। अपने टारगेट हमेशा रखियो और जितना बड़े से बड़ा सोच सकते हैं उतना सोचें। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप सोचें कि आप अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी या मुकेश अंबानी बनेंगे। अपने आप से आपको प्रोमिसेस करने हैं और बड़े प्रोमिसेस करने हैं। आपको किसी को जरूरत नहीं ये सब चीजें बताने की, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में आपको ये चीजों को नोट डाउन करके रखना है। अगर पेन और पेपर पे आप नोट डाउन कर सके तो इससे बेटर कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो दिल के कोने में कहीं ना कहीं आपको पहला। सेकेंड थिंग क्या है कि मोटिवेशन, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ मोटिवेशन से अच्छा मोटिवेशन कुछ नहीं है। मे भी हो सकता है कि मेरी बातें आपको 5 मिनट के लिए मोटिवेट कर दें, लेकिन हो सकता है कि सेशन खत्म होने के बाद में फिर हम उसी दुनिया में चले जाएंगे, फिर से वही डिमोटिवेशन का ग्राफ हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो मोटिवेट अपने आप को कैसे करें? मोटिवेट करने का सबसे सिंपल और सबसे सही तरीका जो मैंने आज तक यूज किया है कि मैं दिल और दिमाग दोनों को अलग रखता हूं। अगर आपको तरक्की करनी है, बहुत ज्यादा तरक्की करनी है, तो हमेशा आपको दिमाग से सोचना है। अगर लाइफ को बहुत ज्यादा हेल्थी रखना है तो आपको दिल से सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन लेके चलें तो आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको हेल्थ भी मिलेगी और वेल्थ भी मिलेगी। ठीक है, और मन का सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोटिवेट रखने के लिए जो सबसे ज्यादा है कि आप दिल और दिमाग के बीच में हमेशा खुद के लिए एक प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस क्या है? हम डिमोटिवेट क्यों होते हैं? डिमोटिवेट हम सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसी सिचुएशन हमें ऐसी मिलती है कि जो कि हमें निगेटिव कर देती है। लाइक सपोज कि आप लोग एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम देने या एग्जाम आने वाला है आपका और एकदम से आपको लग रहा है मेरी बैक आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे? ओके, तो ऐसे जितने वर्स्ट से वर्स्ट केसेस हैं, हर बंदे के दिमाग में कुछ ना कुछ निगेटिव रहता होगा, उनको आपको पहले ही से सोचना है। लाइक कि आप हो सकता है 15 दिन बाद आपके साथ में ऐसा हो जाए। यही चीजें तो हमें डिमोटिवेट करती हैं। अब आपको क्या करना है? डेली एक ऐसी बुरी सिचुएशन के बारे में आपको सोचना है और उसके बारे में तब तक आपको सोचते रहना है जब तक वो पॉजिटिव ना हो जाए। मैं डेली ये काम करता हूं कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के बारे में सोचता हूं और तब तक मैं सोचता रहता हूं जब तक उस सिचुएशन का या तो सोल्यूशन ना निकल आए, जब तक वो पॉजिटिव ना हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी कंडीशन पे आपको नाइट में सोने से पहले अपने माइंड को पॉजिटिव करके सोना है। डजंट मैटर आपको नींद नहीं आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव ना हो जाए तब तक आपको सोना नहीं है। दैट इज 100% साइंटिफिकली प्रूफ कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो लास्ट डिसीजन या कमांड हमारा कॉन्शियस माइंड उसको देता है, सबकॉन्शियस माइंड उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करने लगता है। लाइक कि आपने एकदम से सोचा कि भाई साहब मैं फेल हो जाऊंगा,
और फेल हो जाऊंगा सोचते सोचते आप रात में सो गए, तो आपका कॉन्शियस माइंड ने जो लास्ट कमांड आपके सबकॉन्शियस माइंड को दी है वो ये है कि ये बंदा चाहता है फेल होना। अगले दिन मॉर्निंग से वो उसी काम में लग जाएगा आपको फेल करने में। सारे निगेटिव ख्याल आपके दिमाग में आने लगेंगे, सब कुछ निगेटिव होने लगेगा। यहां तक हो सकता है कि थर्ड सेम में आप कंप्लीट करने के बाद आप ये सोचो कि यार मैंने डिग्री गलत चूज की, मुझे तो ये करना ही नहीं था, आप इतना निगेटिव हो जाएंगे। तो इसका सबसे पहला वो है कि आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव कैसे रखें? तो पॉजिटिव रखने के लिए भी एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर आपको बनाना है अपने लिए। हर आदमी का एटमॉस्फेयर, परफेक्ट एटमॉस्फेयर अलग अलग हो सकता है। मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, सर का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। आपको परफेक्ट एटमॉस्फेयर के लिए क्या है कि आज से ही आप प्लान करें कि आज से 10 साल बाद अपने आप को कहां देखना है, और उसकी प्लानिंग आज से स्टार्ट कर दें। पॉजिटिव थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी गोल आप बनाए उसमें उसको बहुत स्मॉल बाइट्स में आप कहते कंप्लीट करें। ओके, लाइक कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इस उंगली से अपने 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 हेयर्स को टच करना है, तो दैट इज अ वेरी स्मॉल गोल, आप इमीडिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि साहब आप के हेयर्स जो है कर्ली हो जाए इमीडिएट, तो नहीं हो पाएंगे, उसमें प्रोसेस है, टाइम लगेगा। तो स्मॉल स्मॉल गोल्स आप लोग बनाएं। स्मॉल गोल्स बनाएंगे तो आपके लिए काफी इजी रहेगा लाइफ को संभालना, पहला। और निगेटिव सिचुएशन के बारे में आप पहले से सोच के चलें, पहला। दूसरी चीज क्या है कि जब आप कुछ, हमारे साथ क्या है, खासकर मोस्टली एशियन और इंडियन कंट्रीज के साथ में ऐसा है कि जब भी हम कुछ बड़ा सोचते हैं या किसी से बोलते हैं तो लोग हमारा मजाक बनाते हैं। लाइफ में अपना जितना मजाक आप बनवाओगे उतना ही आप अंदर से मजबूत होगे। क्यों? क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी होगी कि अब इससे बुरा क्या होगा, अब इससे बुरा क्या होगा। ठीक है, आप किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की स्टोरी उठा के देख ले, वो कहीं ना कहीं फेल जरूर हुआ है। कोई भी ऐसा इंसान या ऐसा बिजनेसमैन या कोई भी रिपोर्टेड जिनके बारे में हम आज बात करते हैं या करना चाहते हैं, आप उसकी बायोग्राफी देखें। उसने उसने कहीं ना कहीं लाइफ में इतनी गहराई देखी है, इतनी निगेटिव सिचुएशन देखी है कि हम और आप सोच भी नहीं सकते उस निगेटिव सिचुएशन में। जैसे अभी मुझे कुछ दिन पहले एक केस याद आया कि एवरीवन नोज एप्पल, ठीक है, एप्पल। और एप्पल के बारे में जब आप सोचते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टीव जॉब्स के बारे में आपको ना पता हो। कैन यू बिलीव, स्टीव जॉब्स को उसकी खुद की कंपनी से जो कि उसने बनाई उसी से निकाल दिया गया था। आप लोग गूगल कर सकते हैं। तो स्टीव जॉब्स, आप सोच सकते हैं कि आपने खुद एक एम्पायर खड़ा किया और उसी कंपनी से आप बाहर हैं। लेकिन फिर अगेन आप निगेटिव सिचुएशन से, क्या स्टीव जॉब्स ने कभी सोचा होगा इतनी निगेटिव सिचुएशन? नहीं सोची होगी। सोची होगी ऐसी वर्स्ट सिचुएशन के बारे में आपको सोचना है और उसको पॉजिटिव करना है। स्टीव जॉब्स ने भी यही किया होगा। मैं मिला नहीं हूं, मिलता तो जरूर पूछ के बताता उनसे उन्होंने क्या किया है सिचुएशन से ओवरलैप करने के लिए। बट अगर मैं होता तो मैं यही करता, और आज वापस वो अपनी पुरानी पोजीशंस पे पहुंच गए थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो ऐसी ही लाइफ में आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पहले से प्लान करना है। और आपको ध्यान रखिए, आप खुद प्रोडक्ट है। हम अपने आप को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम अपने आप को सेल कर रहे हैं। डजंट मैटर हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। आप अपने आप को जब एज ए प्रोडक्ट देखते हैं तो नेचुरल सी बात है आपका परफेक्ट सिनेरियो, परफेक्ट कंट्रीब्यूशन में होना बहुत जरूरी है। कोई भी बुरी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता है, आप, मैं, कोई भी। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। एवरी डे एटलीस्ट 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट। मेडिटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ देम। मेडिटेशन मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग मेडिटेशन स्टार्ट करें, इट्स रियली हेल्पफुल। ओके, मतलब अर्ली एज से आप स्टार्ट करेंगे तो एक समय तक आप जब पहुंचेंगे तो आपको बहुत कुछ परफेक्ट हो चुका होगा आपके लिए। तो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी खुद की पर्सनल विल पावर, उसको हमेशा बिल्कुल एकदम टॉप पे रखें। विल पावर इन द सेंस की लाइक कि अगर आपसे अभी बोले कि साहब कोई चलना है, माउंट एवरेस्ट पे चलना है, तो आपने बोला हाँ साहब अभी चलते हैं। आपकी विल पावर ऐसी होनी चाहिए। अब आपने बोलने के बाद में उस चीज को प्रूफ करना है कि ठीक है। उसके लिए आपको प्लानिंग चाहिए और प्लानिंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन।
पहला, आपके अंदर इस प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन, वर्स्ट सिचुएशन, इन सब चीजों के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है यार ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं या नहीं है, पता नहीं कैसा, मतलब। तो ये आप समझ लें कि आपको खुद से बेहतर कोई नहीं जानता है, आपको खुद को समझना होगा। और इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाना चाहता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि क्या आप गुड इनिशिएटर है या आप गुड फॉलोअर है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने लाइफ में किया है। इनिशिएटर क्या, लाइक कि आप क्या एक परफेक्ट कप ऑफ टी बना सकते हैं डिफरेंट तरीके से। लोगों ने इलायची की चाय सुनी है, मतलब जिंजर टी सुनी है, कार्डमम टी सुनी, बहुत सारी। क्या कुछ ऐसा आप बता सकते हैं जो जिस तरह की चाय आज तक बनी ना हो? अगर वो क्वालिटी आपके अंदर है तो ऑल द बेस्ट, यू आर अ गुड इनिशिएटर। या लाइफ में आपको कुछ इनिशिएट करने का मन करता है आउट ऑफ द वे जाके, रेगुलर प्रैक्टिस के अलावा, अगर ऐसा है तो आप एक गुड इनिशिएटर है। तो अपने आप को एक ए कैटेगरी में आप रखें। दूसरा है गुड फॉलोअर, कि मुझे ये तो नहीं पता कि परफेक्ट चाय कैसी बनाई जाती है, लेकिन मैं सीख जरूर सकता हूं कि परफेक्ट चाय कैसी बनाई जा सकती है। तो आप एक गुड फॉलोअर है। अब आपने इनिशिएटर हैं तो आपके लिए ए प्लान है, और आप गुड फॉलोअर है तो आपके लिए बी प्लान है। अब ए प्लान क्या है? आप इनिशिएटर है तो आप, नेचुरल सी बात है आज की डेट में, या तो आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। ठीक है, जॉब में भी गवर्नमेंट मिलेगी या प्राइवेट मिलेगी, बिजनेस में भी हो सकता है पेरेंटल बिजनेस हो या आप कुछ नया स्टार्ट करें। तो अगर आप जॉब करेंगे तो नेचुरल सी बात है, यहां भी आपके लिए वही है कि आप इनिशिएट करें नई चीजों को, नई टेक्नोलॉजी को, पहला। लेकिन जब हम जॉब करते हैं तो हमारे साथ में एक सबसे बड़ा जो निगेटिव एलिमेंट है, जो बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है और डेवलप हो जाता है, दैट इज जॉब इक्वल टू मीन टू से नौकरी। मेरी तरक्की या मेरा इतने कम समय में यहाँ तक पहुंचने के पीछे एक जो की पॉइंट है कि मैंने कभी अपने आप को एज ए एम्प्लॉय नहीं सोचा। आई ऑलवेज थिंक लाइक ए एम्प्लॉयर। अगर मैं कंपनी का ऑनर हूं या मैं बनूंगा तो मैं कैसे करूंगा, तो आपको हर चीज समझ में आएगी। फिर हो सकता है वो 5 मिनट ऑफिस लेट आना आपको मतलब खलेगा, क्योंकि आप जब 5 मिनट लेट जाते हैं तो आपसे आप यही सोचते हैं कि मैं 5 मिनट लेट ही तो गया हूं, मैंने कौन सा हिरोशिमा पे बम छोड़ दिया या मैंने अमेरिका पे अटैक कर दिया, 5 मिनट लेट ही तो गया हूं। अगर आप एज ए एम्प्लॉय सोचेंगे तो 5 मिनट वाकई इट्स वेरी सिंपल थिंग, 5 मिनट लेट ही गया हूं मैं। लेकिन एज ए एम्प्लॉयर, और अगर आपकी कंपनी में 5,000 लोग हैं और हर बंदा 5 मिनट लेट आ रहा है, then 5,000 multiply by 5 minutes multiply by 365, तब आपको लगेगा कि आपके करोड़ों रुपए उस 5 मिनट लेट आने की वजह से चले गए। तो आप कभी भी लाइफ में 5 मिनट लेट नहीं जाएंगे, नंबर 1। सेकेंड थिंग, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने आप को 9 to 5 में कभी मत बांधिएगा। दिस इज माई पर्सनल एडवाइस। क्योंकि जब आप अपने आप को 9 to 5 में बांधते हैं तो आप रूटीन एक्सेस पॉइंट पे चलते रहते हैं, तो ना तो आपको इनिशिएट करने का मौका मिलता है और ना ही आपको फॉलो करने का मौका मिलता है। क्योंकि इन दोनों ही चीजों के लिए आपको अपने आप को एज ए एम्प्लॉयर सोचना पड़ेगा। जब आप सोचना चालू कर देते हैं आपकी ग्रोथ, तरक्की होने लगती है। क्या क्या हम नया इनोवेट कर सकते हैं, किस तरीके से एक्सेलरेट। बिजनेसमैन का मतलब ये नहीं है कि आज आप जॉब छोड़े और कल को बिजनेस करने चले जाएं, नहीं। आप जहां जॉब कर रहे हैं वहां भी आप बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आप दूसरा कुछ स्टार्ट कर दे, समथिंग लाइक दैट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको नए तरीके से, नए इंप्लीमेंटेशन, नए इनिशिएटिव देके भी आप लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर बिजनेसमैन को ये पता है कि वो एक राइट प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करने को तैयार रहता है। घनश्याम दास बिरला जी की अगर आप कभी ऑटोबायोग्राफी पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि लाइफ में अगर तरक्की करनी है तो आपको लोगों को कमाना आना चाहिए। जिस दिन आप लोगों को कमाना चालू कर देते हैं, लाइफ में आपको तरक्की मिलने लगती है। ठीक है, अब रही बात कि जैसा मैं सेकंड उस पे आ रहा हूं
कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरी प्लानिंग करनी है, ठीक है। सपोज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर मैंने लास्ट टाइम भी बोला था इट्स वन ऑफ दी बेस्ट फील्ड, और इस समय तो आप किसी भी न्यूज चैनल या मीडिया को उठा के देखते हैं तो सिर्फ एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर चल रहा है, ओके। तो एग्रीकल्चर में भी आप एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर फील्ड को वो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले, बिजनेस से पहले मेरा सजेशन ये है कि आप किसी भी फील्ड का बिजनेस करना चाहें उससे पहले कम से कम उस फील्ड से रिलेटेड कंपनी में आपको पहले जॉब कर दीजिए एटलीस्ट 4-5 ईयर्स, और वो भी उस कंपनी में जो कि बहुत बड़ी कंपनी ना हो, क्योंकि बड़ी कंपनी के साथ में क्या है कि वो एक सेट फॉर्मेट पे काम कर रही होती है, आपकी एक लिमिटेड जॉब प्रोफाइल होती है, उस जॉब प्रोफाइल में ही आप घूम रहे होते हैं, आपको सीखने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन स्मॉल कंपनीज के साथ में क्या है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको इनिशिएट करने का मौका मिलता है, लर्निंग प्रोसेस को बहुत डिटेल में सीखने का मौका मिलता है, सारी चीजों को, क्योंकि अक्सर केसेस में क्या होता है कि हम बिजनेस करते हैं, फंड लिया, लेके चालू कर दिया, नॉलेज नहीं है और वो बिजनेस खत्म हो जाता है, ठीक है। उसको भी हम डिटेल में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि सपोज आप एफएमसीजी से रिलेटेड कोई किसी कंपनी का कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप किसी भी अच्छी एफएमसीजी कंपनी में 4 से 5 साल जॉब करें, उसके बाद में उससे रिलेटेड आप प्रोसेस को आप कर सकते हैं। अब यहाँ भी दो चीजें आती हैं, लाइक कि सपोज आप डेयरी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कि आपका एक फैमिली बिजनेस है जहाँ पे आप लोग दूध बेच रहे हैं, ठीक है। तो दूध बेचने के साथ साथ क्या है कि दैट इज अ इमीडिएट है, तो इस पे आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे कि हो सकता है दूध बेचने की जगह आप दूध का पनीर बना के बेचें, या हो सकता है अपने दूध के साथ साथ औरों से भी आप कर सकें, तो ये इस प्रोडक्ट को आप किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो आपके लिए डिटेल नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप उस नॉलेज को ग्रैब कर लेते हैं उसके बाद बिजनेस करने के में आपको सक्सेस के जो चांसेज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। आपका खुद का बिलीफ सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। तो आई थिंक दिस इज माय स्टोरी एंड करेंटली स्टिल इट इज ऑन गोइंग। अभी बहुत कुछ बाकी है क्योंकि अभी सिर्फ कैलेंडर बदला है, 2020 से 2021 में आ गए हैं, और हर साल कैलेंडर बदलता है, और कोशिश मैं ये करता हूँ कि हर साल थोड़ा मैं भी बदलूं, ठीक है, ताकि जो भी माइलस्टोन है उस पर चाहे वो एक कदम क्यों ना हो सका, मैं ऑलवेज ट्राई कि उस माइलस्टोन की तरफ एक कदम और बढ़ूं, ठीक है। सेकेंड, ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को जितना ऑनेस्ट रख सकते हैं आप रखिए, जितना आप ऑनेस्ट रखेंगे उतना ही लाइफ में आपके अंदर सुकून रहेगा, ठीक। पॉलिटिक्स बिल्कुल छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा होती है, बिल्कुल छोड़ दीजिए, दिमाग आपका शांत रहेगा। क्यों? क्योंकि बिलीफ सिस्टम आपका एक ही चीज कहता है, या तो ऊपर वाला है या नहीं है, और है तो डरना क्यों, और नहीं है तो डर के क्या कर लेंगे। तो आपका ओन जो बिलीफ सिस्टम है उस पर आप काम करें, अपने डेडिकेशन, किसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश ना करें। एक सबसे खास बात क्या है, हम लोगों को सेटिस्फाई करने में इतना ज्यादा, लोगों को प्लीज करने में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपने ही माइलस्टोन से इधर उधर चले जाते हैं। आपको फोकस रखना है अपने ऊपर। अगर आप फोकस रखेंगे तो बुरी से बुरी सिचुएशन से भी आप निकल सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अपनी पर्सनल स्टोरी बताई, ये इस स्टोरी को बताने के पीछे सिर्फ मेरा ऑब्जेक्ट ये था कि जब मुझ जैसा नालायक बंदा वहां से यहां तक पहुंच सकता है तो आप लोग क्यों नहीं पहुंच सकते। तो जितने भी मेरे फेलो स्टूडेंट्स हैं एंड उन सब से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, हर कंडीशन पे पॉजिटिव रखिए, कि जो निगेटिविटी है ना वो सिर्फ एक लम्हा है, एक मूवमेंट है, मे बी वो 5 मिनट्स, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो चला जाएगा। अच्छे और बुरे समय की जो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी ये है कि अच्छा समय भी बीत जाता है, बुरा समय भी बीत जाता है। हमें जिंदगी भर उस समय को माइंड में नहीं रखना है। अगर कुछ भी हमारे साथ आज गलत हो रहा है, डजेंट मैटर, हो सकता है आपकी किसी फैकल्टी मेंबर ने आपको डांट दिया हो, आपको आपकी फैमिली में इमोशनल ट्रिगर्स नहीं हो रहे हो, आपको कोई समझ नहीं रहा हो, ये दैट इज द टेम्परेरी फेसेस, ये बीत जाएंगे। एट द एंड आपके साथ आपकी खुद की ओन पॉजिटिविटी ही काम आएगी।
अब मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई पर्सनल क्वेश्चन है या समथिंग जो कि या कोई भी एनीवन कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो इट्स रियली वेरी ऑनर फॉर मी। आई थिंक अब हम हाँ मैं दरअसल उन्होंने डॉक्टर देवेंद्र पाल जी ने सबको म्यूट कर दिया था, तो मैं भी म्यूट अपने आप अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। अच्छा ओके, नाउ ही अलाउड टू अनम्यूट एवरीवन। सो आई रिक्वेस्ट कोई भी स्टूडेंट प्लीज, आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, कोई डाउट है, तो एक एक करके आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई भी, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे फैकल्टी हो, स्टाफ हो, कि वो पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो जो भी बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा, और हम हमारे सुधीर जी अगर उस नेचुरली वो जीरो से उठकर आए हैं तो बहुत सारे सवालों के जवाब तो अनुभव से ही मिल जाते हैं, उनके लिए किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी आप में से कोई पूछना चाहता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज आस्क। कोई पूछना चाहता है? हाँ जी, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आप लोगों को। सुधीर जी, आप मैं रिक्वेस्ट करूं, अभी जो आपकी जिन ऑर्गेनाइजेशंस में आपने काम किया है पिछले 10-12 साल में, उनका थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ दे देंगे, और अपना प्रेजेंट जो आपका प्रोफाइल है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो शायद बच्चों को और मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, जो लास्ट मेरा जो करियर है वो मुरादाबाद से स्टार्ट हुआ। ओके, आई हैड ज्वाइंड दैट ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्टोर कीपर। ओके, और सेम उसी मानसो पैराडाइज में लास्ट मेरा जो डेजिग्नेशन था वो होटल मैनेजर था। ओके, उसके बाद में मैं मूव कर गया गुड़गांव एंड स्टार्टेड विद one of the biggest 5-star chain, that is a Bristol. Okay, and that is the first 5-star deluxe in Haryana. वहां से मैंने सेल्स हेड से स्टार्ट किया, और देन उसके बाद में क्लार्क ग्रुप ऑफ होटल में ज्वाइन किया। क्लार्क ग्रुप ऑफ होटल में एज ए जनरल मैनेजर ज्वाइन किया, एंड जिस समय मैंने एज ए जीएम ज्वाइन किया था, आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट जनरल मैनेजर। ओके, एंड उसके बाद में उसी कंपनी में मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंचा। उसके बाद में सेकेंड कंपनी मैंने स्टार्ट की है, ठीक है, जो कि इसमें जो फाउंडर्स हैं कंपनी के मिस्टर अग्रवाल फैमिली है, दे आर वेरी साउंड इनटू डिफरेंट मेरे हाथ में तो वही है। एंड करेंटली आई एम हेडिंग दिस कंपनी एज ए सीईओ। मैं इक्वली काम करती हूँ, ऐसा नहीं करती कि मतलब काम कराती। बहुत से जी एक मिनट म्यूट कर दीजिए, मुझे लग रहा है फिर डिस्टर्बेंस कर रहा है। लगातार मैं लगी रहती हूँ। हाँ, म्यूट कर दीजिए। प्रेजेंटेशन में आप लोग बैठे थे ना, तो मैं कह रही हूँ पीपीटी वो जो है पीपीटी लेकर आया था, जिसके फोटो में लेकर था, आड़े तिरछे सीधा नहीं कर सकते थे इसको। डॉक्टर रश्मि, मैं जब पहुंची थी तो मुझसे स्टार्ट हुआ। डॉक्टर रश्मि, हाँ सुधीर जी, अब आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सुधीर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज आप। हाँ जी, सो currently जो मेरा प्रोफाइल है, आई एम हेडिंग दिस कंपनी एज ए कैप्सूल ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके, एंड currently under this company we are managing 21 hotels across the country. Okay, and every month we are launching one hotel into different platform, and very soon we are going to launch our own hotel management college also. Okay, so that ki because job assurance and एक सर्टिफाइड जॉब की गारंटी उसमें रहेगी। ओके, एंड डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट भी होप सो कि टीएमयू के साथ ही स्टार्ट होगा। तो लाइफ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ओके, कि इट्स द सिंगल वर्ड। आज आपको अगर इस प्रेजेंटेशन के बाद में कुछ याद रखना है तो सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, दैट सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। और आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन को ना फेस करने हो आपके सामने। तो मैं सभी स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि अगर वो अपनी लाइफ का कोई भी एक
इसको लगता है कि अगर ऐसा होता तो क्या करना चाहिए, वो तो हो सकता है उसके लिए हेल्प आउट कर सकते हेलो सर। हाँ जी, बोलो बेटा। सर मैं संयम सर, जैसे आपने बताया कि आप चांसलर सर के पास गए एमबीए का करने, तो उन्होंने बोला एमबीए की आपको जरूरत नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर जैसे आपने एमबीए की, अगर नहीं भी करते तो आपको मतलब उससे क्या फायदा मिला एमबीए करने से? बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं भी लाइफ में हमेशा ही सोचता हूँ कि मुझे एमबीए करने से क्या फायदा मिला। होता है क्या है कि आज की डेट में तुम्हें एक कप चाय बनानी है, ठीक है, हो सकता है तुम्हें शुगर की जरूरत हो या हो सकता ना जरूरत हो, लेकिन एक भी एलिमेंट अगर निकल जाता है तो उसका जो टेस्ट है वो अधूरा रहता है। तो लाइफ में सक्सेस के लिए आपको थॉटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों ही की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ऊपर वाले ने हमें दिल और दिमाग दोनों दिया है। तो इसीलिए आज की डेट में ऐसा नहीं है कि विदाउट डिग्री लोगों ने बहुत कुछ नहीं किया। आज तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं विदाउट डिग्री बहुत कुछ किया, लेकिन यहाँ पे अपने सेल्फ मोटिव, बिकॉज दिस इज दैट इज अ पार्ट ऑफ माय गोल्स। तो मुझे ये लाइफ में सबसे पहले 4:15 पे ही चलेगी। अच्छा ठीक है, तो मैं बोलूंगी, मैं जब तक उन लोगों के पास जा रही हूँ या चलो तो चलो, तो कल भी ले लेगी, और मेरे तो मैंने ले लिया। उस डिग्री ने मुझे बहुत जाऊँ? अरे इधर करो सुधीर जी कुछ टेक्निकल समस्या होगी मुझे लग रहा है। हाँ हाँ, देवेंद्र पाल जी म्यूट कर दो एक बार सबको। देवेंद्र पाल जी। हाँ सर, हाँ सर। म्यूट हो गया। सिक्योरिटी में चाहो अनम्यूट करने की परमिशन दो। जी सुधीर सर, सुधीर जी आप अनम्यूट, ठीक है ठीक। हाँ, आई थिंक संयम आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हेलो, आई थिंक वो भी म्यूट। सर संयम एक्चुअली क्या हमने सबको म्यूट कर दिया है, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए संयम, संयम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अब ठीक। यस सर। सर जो है सर, जैसे मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ सर, जैसे मेरे पास मतलब मेरे पापा की जो कमाई के हिसाब से फार्मर है, तो उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है लगाने का, बीएससी करा दिया उनने। अब उनके पास 2-5-10 लाख रुपए और है लगाने के लिए, अगर मैं बिजनेस करूंगा या एमबीए करूंगा। ओके। देखो बिजनेस करने के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन पैसा ही सबसे बड़ा रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है। आज की डेट में बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो कि आप बिना पैसे के भी कर सकते हैं, ओके। आज संयम आपको एक परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट, ठीक है, ताकि आपकी जो हार्डकोर मनी है उसको आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकें, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि सबसे पहले किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप जॉब के बाद में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे परफेक्ट होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आपको एक थॉटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाती है, ओके। वैसे संयम आप किस फील्ड में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? सर वैसे मैं तो एग्रीकल्चर से हूँ, तो एग्रीकल्चर से भी करना चाहता हूँ एग्रीकल्चर से सर। बिजनेस करने के लिए बिलीव मी, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कुछ नहीं करें, किसी भी गांव से मॉर्निंग में अगर आपके पास डेडिकेशन है, मैंने पहले ही बोला था, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन द सेंस कि गन्ना मत बेचो, गन्ने का डायरेक्ट गुड़ बना के डायरेक्ट घरों में पहुंचा दो। कैन यू बिलीव? आज की डेट में आपका गन्ना में भी 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए जाता होगा, ओके। अगर उसका प्रोसेस इंटीग्रेशन के साथ में, क्वालिटी के साथ में आप गुड़ या शक्कर बनाते हैं, तो एक गुड़ की जो कॉस्ट है वो 60 से 70 रुपए किलो, तो वही गन्ने की जो कॉस्ट है वो आपको 2000 से 3000 पड़ जाती है, ओके। और आज की डेट में स्मॉल लेवल से आप इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट पैकेजिंग और ऑर्गेनिक के साथ में अगर आप लोग आज, कैन यू बिलीव, एक परफेक्ट ऑर्गेनिक फूड की कॉस्ट लोग कितनी हायर रेट में परचेज करने को तैयार हैं, इवन यू कांट थिंक। सर आप सही कह रहे हैं सर, जो कि मेरा एरिया
बुंदेलखंड है सर, बुंदेलखंड MP, टीकमगढ़। जी सर यहाँ से सर मार्केट सर बहुत लंबा दूर है सर। कोई फर्क नहीं सर पड़ता। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए कंसोलिडेट अप्रोच रखनी है। फैक्ट है कि अगर आप 50 किलो सामान लेके मार्केट पे जाएंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम रहे, लेकिन वो 50 किलो अगर आपके गांव में 10 लोग हैं, सबसे पहले लोगों को कलेक्ट कीजिए। प्रॉब्लम क्या आती है कि हम डायरेक्ट इंडिविजुअली अप्रोच करते हैं तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन आज अगर आप सब लोगों से बोल के एक कंसोलिडेट अप्रोच करते हैं और सारा का सारा सामान सपोज 3 दिन बाद आप मार्केट भेजते हैं, जिसमें तो वहां 50 किलो की जगह पे आप 500 किलो माल भेज सकते हैं। ओके, चाहे वो आपके खेत में कुछ भी प्रोडक्शन क्यों ना हो रहा हो। आपको लगता है कि ये मैं 50 किलो माल लेके जाऊंगा तो इससे ज्यादा भाड़ा लग जाएगा, तो आप कुछ मत करें, आप लोगों को बोले भाई आप ही माल देने जा रहे हो, अब आपको माल देने ले जाने की जरूरत नहीं, वो हेडक मेरी है, मैं आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूंगा, लेकिन मेरा जो 500 रुपए का एक्सपेंस है उसको आप लोग शेयर कर ले, तो वही सर लास्ट क्वेश्चन सर, आपका 50 रुपए का हो जाएगा। सर जैसे बिजनेस करने के लिए सर MBA जरूरी है या नहीं है सर? MBA कर रहे हैं हम कि नहीं कर रहे या एमबीए आप करिए, एमबीए करने के बाद से आपके एक दिल और दिमाग से बहुत बड़ा एक डर खत्म हो जाएगा कि मेरे पास डिग्री भी है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एमबीए एक यूजलेस है, अगर 2 साल वर्ल्ड की टॉप 5 बेस्ट डिग्री में से एमबीए वन ऑफ है। एमबीए इज ए कंपलसरी, अगर आपको बिजनेस करना है तो एमबीए आपको करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जिस भी फील्ड का आप बिजनेस करना चाह रहे हैं उस फील्ड की आपको एक रीजनल डिग्री भी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्रीकल्चर से आप रिलेटेड हैं और एग्रीकल्चर का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर की डिग्री लें, देन एमबीए करें, देन ड्यूरिंग एमबीए आप उसको पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं उससे रिलेटेड किसी भी फील्ड में, सो दैट कि आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस को समझ सके, पैकेजिंग को समझ सके, आप लॉजिस्टिक को समझ सके। इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम कंज्यूमिंग प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। डायरेक्ट बिजनेस करने से पहले मेरा सजेशन ये है, डिग्री करें, देन जॉब करें, देन बिजनेस करें। सर डिग्री के पहले सर जॉब करें या सीधा MBA? जैसे BSc मेरी फाइनल ईयर चल रही है सर, तो सर पहले मैं जॉब करूं 1 साल या फिर सीधे साथ में? नहीं, आप एमबीए स्टार्ट कर दें, एमबीए के साथ साथ आप जॉब कर सकते हैं। मैंने पूरे 2 साल एमबीए के साथ जॉब की है। ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है वर्ल्ड में या ऐसा जहां पे पास में कोई एग्रीकल्चर लैंड ना हो, डिपेंड करता है आप कितना मेहनत कर सकते हैं। ओके सर, वेरी वेरी थैंक यू। और किसी के मन में कोई प्रश्न है स्टूडेंट्स? यही वाले लगे हुए बस इनके वही है, अरे फिर भी अच्छे लग रहे हैं देखने। और किसी के मन में कोई प्रश्न है तो? सर प्रिंसिपल साहब भी जुड़ गए हैं। हाँ जी, प्रिंसिपल सर भी जुड़ गए हैं। हाँ, तो उनको बुलाइए, सर का उद्बोधन होना है 2 मिनट का। प्रिंसिपल सर नमस्कार सर। सर शायद म्यूट है। पांडे सर। हाँ बोलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। आई आवाज? आ रही है सर। हाँ बोलो। हाँ बताओ सर, कार्यक्रम के बारे में आप भी अपने कुछ। अच्छा बोलना है, ठीक है। हाँ भाई हाँ भाई अवस्थी जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, आपने बहुत अच्छा लोग बच्चों को सीख दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग इंडियन हैं। इंडिया में कभी भी कोई दूसरे की सीख से आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए मैंने बोला सर, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। इंडिया में जब खुद गिरेंगे, उठेंगे, चलेंगे, उसी से सीखेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। एग्रीड सर, एग्रीड। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम फिर खड़ी हो गई है मुझे लग रहा है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो उसी से हम लोग आगे बढ़े। देखिए, लेकिन बच्चों में जुनून होना चाहिए, किसी चीज को करने का जुनून जी वो होना चाहिए, और जुनून डेवलप होगा सम टेक्निकल, जैसा कि आपने कहा, सेल्फ मोटिवेशन से जी। लेकिन सेल्फ मोटिवेशन के साथ ही उनमें अंदर अपने प्रोफेशन के प्रति कितना अटैचमेंट दिया गया है जी, तभी वो प्रोफेशन से अटैच हो पाएंगे। क्योंकि पूरी डिग्री ले लेते हैं, डिग्री लेने के बाद भी प्रोफेशन से अटैच नहीं हो पाते हैं। जी। अगर
प्रोफेशन से बेहतर तरीके से अटैच हैं, उनके अंदर जुनून है। इसमें इंस्टीट्यूशन भी मदद करता है, बच्चे का खुद का तो है ही है, इंस्टीट्यूशन भी मदद करता है, और तभी इन सबको लाते हुए ही बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर की स्थिति, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल एग्रीकल्चर आसान है, अब एग्रीकल्चर की समस्या ही सबसे बड़ी ये है, अगर जिस दिन किसान अपने प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की क्षमता ले ले। आपकी वॉइस आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? अब आ रही है। अरे मैं यही कह रहा था कि हमारे एग्रीकल्चर की समस्या यही है कि अगर किसान जिस दिन अपने प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की क्षमता आ जाएगी, उस दिन ही काफी हद तक चेंज हो जाएगा, और ये चेंज करने की चेन हमारे एग्रीकल्चर के विद्यार्थी बन सकते हैं। बिल्कुल, वेरी राइट सर, वेरी राइट। हाँ, ये एग्रीकल्चर के विद्यार्थी बन सकते हैं, और इनको अभी से इस दिशा में सोचना चाहिए। एग्रीकल्चर का फ्यूचर हमेशा है, रहेगा, इसमें कोई। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है? जी सर, आ रही है, अब आई। हाँ आई सर, हाँ, आई। तो मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूं कि एग्रीकल्चर का हमेशा स्कोप है और रहेगा, लेकिन हम अपने प्रोफेशन से टोटली अटैच हों और अपने अंदर जुनून भर के सीखने की कोशिश करें। धन्यवाद। पिछली बार ठीक है, ड्यूटी है ना। तो इसी के साथ मैं अवस्थी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे बच्चों को काफी अच्छी तरीके से उन्होंने बताया, और उनको आगे बढ़ने में ये चीजें सहायक होंगी। धन्यवाद। डॉक्टर एमपी। जी सर, वो बीच में मेरा ये इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं सीन से बाहर हो गया था, दोबारा से मैं जुड़ा हूँ। तो मैंने अपनी बात अवस्थी जी को धन्यवाद देते हुए समाप्त कर दिया है। अब आगे बढ़ो। जी, अब मैं फिर दोबारा से एक बार फाइनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी फैकल्टी, स्टाफ या स्टूडेंट जिनके मन में प्रश्न हो, और वो आप पूछ सकते हैं। और फाइनली हमारे सुधीर अवस्थी जी का, हमारे प्रिंसिपल साहब का, देवेंद्र पाल जी जो इस प्रोग्राम के ओवरऑल कोऑर्डिनेटर हैं, उनका, जो हमारे IIC है, इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल है, उसके तहत बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बहुत सारे टास्क कॉलेज को दिए हुए हैं इन द कंसल्टेंसी विद द स्टूडेंट्स आल्सो, कि वी आर हैविंग अ ग्रुप इन द कॉलेज दैट इज इंस्टीट्यूट कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल। तो उसके तहत बहुत सारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये एक्सपेक्ट करता है कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से, कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए, सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए, उनके रेस्पेक्टिव एरियाज में बहुत कुछ एक्टिविटीज प्लान की जाएं, जिससे आपस में एक संवाद की स्थिति, एक कम्युनिकेशन की सिचुएशन बनी रहे, और जिससे सोसाइटी का और अल्टीमेटली देश का अच्छा हो सके, भला हो सके, और लोग आपस में एक दूसरे का थॉट प्रोसेस समझ सकें। जैसे आज सुधीर अवस्थी जी ने अपने जो एक रियल स्टोरी है आपके साथ शेयर की है, और ऐसे ही हम आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते रहेंगे। और आपको थोड़ा सभी को मैं जानकारी देना चाहता हूँ, जैसे सुधीर जी ने वैसे इंडिकेशन दे ही दिया है, वी आर इन द ट्राइंग टू कोलैबोरेट विद Srigo Hotels with the TMU to conduct some programs for the betterment of the society and also to give the employment to the students. और पहले भी हमारे अलुमनाई एसोसिएशन में सुधीर जी मेंबर हैं ऑलरेडी, तो और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते रहते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज में। और जब मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने टाइम निकाला है। और आप कभी भी कोई भी इस तरीके की बात जो मोटिवेट हमको करे, आप लोगों को मोटिवेट करे, हमको बूस्टअप करे, उन सब डिस्कशन से नेचुरली हम लोगों को, बच्चों को फायदा मिलता है, हम लोगों को फायदा मिलता है। और हम अपने आप को बूस्टअप, अपने आप को एक तरीके का, जैसे कोरोना की वैक्सीन वाला काम है ना, तो वैसे हमें इसकी वैक्सीन मिलती रहती है, तो मोटिवेशन मिलता रहता है। और नेचुरली आप जानते हैं टीचर का सबसे अच्छा रिवार्ड किसी भी टीचर के लिए, और हमें भी, मैं स्पेशली अपने लिए भी कहूँ और बाकी सभी टीचर्स के लिए भी कहूँ, कि टीचर्स को सबसे अच्छा रिवार्ड वही होता है कि उनका स्टूडेंट अगर अपनी अच्छी जगह पहुंच जाए तो टीचर भी सम्मानित महसूस करता है नेचुरली। और आपको जानते हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ कि दुनिया में केवल 2 ही लोग हैं
जिनको खुशी होती है कि उनका बच्चा जो है, उनका स्टूडेंट जो है या उनका बेटा बेटी है वो उनसे बहुत आगे पहुंचे, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक बार एक महफिल में किसी ने पूछा था कि भाई आईआईटी का कोई सेशन चल रहा था, तो किसी ने पूछ लिया कि भाई सर आपके आईआईटी वाले कई कई करोड़ के पैकेज में जाते हैं, आप अभी भी जो है लाख 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी पे टीचर बना रहता है। तो एक जवाब उसमें से आया था कि बल्ब में और दिए में यही तो फर्क होता है, एक बल्ब दूसरे बल्ब को टच करके कभी नहीं जला सकता, पर एक दिया लाखों दियों को जला सकता है। तो यही फर्क है दिए में और बल्ब में। तो सुधीर जी तो हमारे बल्ब हैं, तो ये रोशनी हमसे बेशक ज्यादा करते हैं और नेचुरली हमें भी मोटिवेशन मिलता है इनको देख के। और मैं पांडे सर का धन्यवाद देता हूँ। बाकी टीचर्स जो इसमें हमारे साथ जुड़े थे उनका शुक्रिया है, और बाकी जो बाहर के मेंबर्स जुड़े थे, फेसबुक लिंक के थ्रू बहुत सारे लोग जुड़े थे। मैं देख रहा था करीब 200 से ज्यादा लिसनर्स हमारे बीच में जुड़े हुए थे इस सेशन में। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर मैं लास्ट में रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर किसी के मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो अभी हमारे पास 5-7 मिनट है। सुधीर जी से मैं रिक्वेस्ट करूं 5-7 मिनट हमारे साथ और जुड़े रहें। अगर किसी के मन में कोई सवाल है, क्वेरी है तो पूछ सकता है जी। सर हाँ जी, लास्ट में अगर किसी क्वेरी, किसी स्टूडेंट की किसी हाँ की जी, कोई क्वेरी नहीं है तो डॉक्टर देवेंद्र पाल जी प्लीज बाइंड अप द सेशन। ठीक है सर। मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए श्री सुधीर अवस्थी जी, अपने डायरेक्टर सर, एमपी सिंह सर, प्रिंसिपल सर, पांडे सर और हमारे सभी कलीग्स, सहयोगी आईआईसी के आलोक सर, साकुली मैम, अर्चना नेगी, उपासना मिश्रा, उपासना सागवान, डॉक्टर अवस्थी जी, सुधीर शुभम शर्मा, डीपी सिंह जी विनीत कुमार, आपकी आवाज चली गई है, इन सभी का वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके सर, ओके सर। अब आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। हाँ, तो आज के कार्यक्रम में सभी ने जो सहयोग दिया, हमारे साथी आईआईसी के हैं, उन सबका धन्यवाद देता हूं। और हम सब टीम के रूप में हमेशा और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। सुधीर सर, और जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक पेशेंस के साथ इस पूरे कार्यक्रम को समय दिया। सबका धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके।